Hello students, it's fifth video of this chapter. We have already discussed number of problems related to equivalence relation. Okay. Now we will discuss these types of problems in short and we will focus on additional part. Okay. Now the question is R is equal to T1 T2. T1 is similar to T2. T1 is similar to T2. Means for reflexive, T1 is similar to T2. Okay. This is the relation. Then T1 is similar to T1. No problem. If T1 is similar to T2, this implies that T2 is similar to T1. Given relation is here reflexive, here symmetric, and suppose T1 is similar to T2 and T2 is similar to T2 is similar to T3. T2 is similar to T3. Then T1 is similar to T3. Then the relation is transitive. The given relation is reflexive, symmetric, and transitive. Then this relation is equivalence relation. Okay. Now the additional part is consider three right angled triangles, T1 with side 3, 4, 5, T2 with 5, 12, 13, and T3 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2, T3 are related? Now T1, T3, T1, T2, T3 रिलेशन अब हमें फाइंड करना है। तो देखिए, तो सिंपल तरीका आप देखिए, इसमें क्या करेंगे, मतलब आप ये देखना है कि T1, T2 मतलब ये रिलेशन होना चाहिए, ये रिलेशन होना चाहिए T1, T2, T3 में, मतलब ये होना चाहिए T1 जो होना चाहिए वो T2 के सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए T1, T2 और T3। तो ये देखना है T1, T2 और T3 सिमिलर है या नहीं। तो देखिए सिंपल, यू कैन सी हियर 3/6, 4/8 एंड 5/10, ये दिया है 1/2। ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि देखिए ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, मैं लिख देता हूं, करस्पॉन्डिंग साइड्स of triangle T1 and T3 are in the same ratio, ओके। ये जब सेम रेशियो में, इसका मतलब हो गया कि T1 इज सिमिलर टू T3, तो T1 इज सिमिलर टू T3। तो आप ये कह सकते हैं हैंस T1 इज रिलेटेड टू T3। ओके। अब देखिए T1 और T2 में रिलेशन आपको नहीं मिलेगा, T1 T2 में रिलेशन नहीं मिलेगा, T2 T3 में नहीं मिलेगा, सिर्फ T1 और T3 में रिलेशन आपको मिल रहा है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं। ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A of all polygon P1, P1 and P2 have the same number of side। तो देखिए अभी जो हमने डिस्कस किया था, तो P1 and P1 have same number of sides, P1 and P2 have same number of sides, this implies that P1 has same number of sides। तो ये देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, और P1 and P2 have same numbers of sides and P2 and P3 have same numbers of sides, means P1 and P3 have same number of sides. It means the given relation is transitive. Okay, transitive. The given relation is reflexive, symmetric, and transitive. It means the given relation is equivalence relation. Hence, the given relation is equivalence.
ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए एडिशनल दिया गया है पार्ट, व्हाट इज द set of all elements of A related to right angle triangle T, right angle triangle, this is the most important, with side 3 4 5। तो देखिए इसको जब आप करेंगे तो देखिए इसमें आपको सिंपल समझ में आ गया होगा। द एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड 3 4 5 आर those polygon which have three sides। सिंपल 3 साइड्स का पॉलीगन होगा, ठीक है ना, 3 साइड्स का पॉलीगन होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की यहाँ बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स का पॉलीगन होगा, ठीक है, 3 साइड्स का पॉलीगन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें लिख दीजिए, हेंस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू ट्रायंगल टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू ट्रायंगल टी is the set of all triangles, set of all triangles। सिंपल, ये आपका आंसर हो गया। इसका 2 पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट ये हो गया और देखिए सेकेंड पार्ट ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ये बोलता है कि L be the set of all lines xy and R be the relation in L defined as L1 is parallel to L2। ओके, तो देखिए L1 is parallel to L1, तो ये क्या हो गया, relation is reflexive। yes, the relation is reflexive। L1 is parallel to L2, this implies that L2 is parallel to L1। द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है विद डेफिनेशन, जैसे मैंने पहले आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है, ठीक है ना। ये मैं आपको सिर्फ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ शॉर्ट में, जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये तो आपको अब समझ में आने लगे ना। L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3, देन L1 पैरेलल टू L3, means this relation is transitive। The given relation is reflexive, symmetric, transitive, hence relation is an equivalence relation। equivalence relation, okay, equivalence relation, okay। ये देखिए, find the set of all lines, find the set of all lines related to line y equal to 2x plus 4। find the set of all lines। देखिए set of all lines का मतलब ये हुआ कि लाइन तो आपको मिल जाएगी, लेकिन इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो देखने वाली चीज है। इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि L1 पैरेलल टू L2, मतलब वो ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल लाइंस आपको बनानी है इससे रिलेटेड। मतलब इसका ये हुआ कि सिंपल है, वो ये कह रहा है इस लाइंस के पैरेलल लाइंस आपको बनानी है सारी, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में आप कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं। तो आप ऐसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y equal to 2x plus 4 is the set of lines that are parallel to the line
लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो सिंपल आप ये समझ जाइए कि इसका अगर स्लोप आप देखेंगे तो इस लाइन का स्लोप क्या है, स्लोप इसका है 2। और आप ये जानते हैं कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उन सभी के जो स्लोप होते हैं वो कितने होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। तो स्लोप जब सेम होगा तो आप जब इसकी लाइंस बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगी। देखिए y इज इक्वल टू 2, यही रहेगा 2x, और ये जो कांस्टेंट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, वेयर c बिलोंग्स टू r, ठीक है। कोई भी रियल नंबर्स के लिए हमें ले सकते हैं। तो आपका जो आंसर आ गया वो से सिंपल सा आंसर आ गया, हैंस द सेट ऑफ ऑल लाइंस related to the given line is given by y equal to 2x plus c, where c belongs to r, okay, where c belongs to r, सिंपल। तो ये आपका आंसर है सेकंड का। इस तरीके से आप एक्सप्लेन करके उसको लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 15th क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए 15th क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें लिखा है लेट r बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3। ये देखिए 1 2 3 4 ये सेट दिया हुआ है, और इसमें ये रिलेशन क्या दिया हुआ है, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। ये ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको इसमें जो है करेक्ट चूज करना है, चूज द करेक्ट आंसर। तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास। तो देखिए इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की बात हो रही, तो सिंपल हम पहले देख लेते हैं। देखिए 1 1 है, इसमें 2 2 है, 3 3 भी है और 4 4 भी। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं, 1 2 इसमें दिया हुआ है लेकिन 2 1 नहीं है। तो देखिए 1 2 बिलोंग्स टू r बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, इट मीन्स द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं भाई। ट्रांजिटिव के लिए आप जब इसको चेक करेंगे तो क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए आप देखिए, ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है ना, इफ ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। तो देखिए इसमें आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 2 एंड 2 2 belongs to R, this implies that 1 2 belongs to R, ठीक है। तो the given relation is transitive। तो ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव हो गया आपके पास। तो ट्रांजिटिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, तो इसमें आप ढूंढ लीजिए रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा है। ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिर्फ एक ही है आपका, ये देखिए ये वाला, R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, यानी कि 15th क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको देख लीजिए जरा, इसमें लिखा हुआ लेट R बी द रिलेशन, R बी द रिलेशन इन द सेट n इज अ नेचुरल नंबर गिवन R इक्वल टू ए बी, A इज इक्वल टू बी माइनस सी, B इज ग्रेटर देन 6, B इज ग्रेटर देन 6 है। चूज द करेक्ट आंसर। B इज ग्रेटर देन 6 का मतलब हुआ B इज ग्रेटर देन 6, इसका मतलब ये आंसर तो पहले ही कैंसिल हो गया ये वाला, क्योंकि इसमें 4 है, 4 इज लेस देन 6 है, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब इन तीन में से कोई आंसर हो सकता है। तो देखिए वो ये बोलता है, रिलेशन ये दिया हुआ है a इज इक्वल टू b माइनस 2। तो देखिए b की वैल्यू अगर मैं ले लेता हूँ 8 लेता हूँ, ये 8 इसमें भी है, देखिए 8 इधर भी है और 8 इधर भी है, तो b की वैल्यू अगर मैं 8 ले लेता हूँ तो 8 माइनस 2 तो क्या आएगा 6। तो 6 और 8 ये आंसर आपका, ये आंसर आपका देखिए सही होगा, ठीक है। ये आंसर सी सही होगा। क्यों, अगर आप कहेंगे ऐसे आपने डायरेक्ट कैसे ले लिया, तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, a इक्वल टू 8 माइनस 2 आप करेंगे तो 6 ही आएगा। तो इसका मतलब ये B जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। D को चेक कर लीजिए, तो D के लिए क्या होगा, तो D के लिए जब आप लिखेंगे इसमें यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 क्या आएगा, 7 माइनस 2 5 आएगा, जबकि यहाँ पे कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। समझ गए आप, इसलिए C ऑप्शन सही है। ऐसे ही बच्चों व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू।